راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے سبھی محبت اور امن پسند مسافروں کو عادل مشتاق کا سلام قبول ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ اپنی زندگی میں خوب کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور ہر ایک چیز جو موجود ہے اس کا ایک مقصد یا مقاصد ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں سال پہلے ٹائم پیس یا وقت کی گھڑی تخلیق کی گئی تاکہ ہر کام ڈسپلن کے ساتھ وقت پر کیا جا سکے۔ اسی طور پر جب ٹریفک سگنلز بنائے گئے تو اس لیے تاکہ ہم رکیں اور پھر دوسروں کو جانے کا موقع دیں اور ڈسپلن قائم رہے۔ اسی طور پر سڑک پر لائن اور لین کا تصور بنا کر ان میں خاص نشانات بنائے گئے تاکہ کسی بھی طور پر حادثات سے بچا جا سکے، اور پھر پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرا کراسنگ بھی بنائی گئی تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ گزر سکے اور حادثات کم از کم بہت حد تک کم ہوں۔ اور جہاں پر یہ چیزیں ساری بننے کا مقصد ہے وہاں پر پاکستان بنانے کا بھی خاص مقصد تھا، جس کو اگر مطلب پر غور کر لیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ پاک لوگوں کی سرزمین، ایسی سرزمین جو برائی سے، جھوٹ سے، فریب سے یا تعصب سے پاک ہو، جس میں ہر رہنے والا امن، محبت اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، ایک دوسرے کا احساس کرے۔ لیکن جب پچھلے دنوں ایک میں نے پوسٹ دیکھی اور سنی تو بڑا دکھ ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان بڑی دیر کے بعد آیا اور بڑی محبت کے ساتھ آیا، اور اس کے ہاتھ میں پانی کی خالی بوتل تھی اور وہ اس کو باہر پھینکنا چاہتا تھا، لیکن اس کو پراپر کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ تو ڈرائیور نے کہا، بھئی جناب اسے کیوں نہیں پھینک رہے، آپ اتنا لمبا سفر کر آئے ہیں، اسے باہر پھینک دیں، شیشہ نیچے کریں اور باہر پھینک دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اس کی پراپر جگہ ایک ڈسٹ بین ہے اور میں وہاں پر ہی اس کو پھینکوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پر سب کچھ ہی ڈسٹ بین ہے، سب کچھ ہی کوڑا کرکٹ ہے، آپ کہیں پر بھی پھینک دیں۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، تو اس شخص نے جناب زبردستی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر باہر پھینک دی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ کیا یہ ملک کوڑا کرکٹ بنانے کے لیے ہم نے حاصل کیا؟ کیا جن قربانیوں کو اس کے لیے دیا گیا، کیا وہ اس مقصد کے لیے تھی؟ تو پاکستان بنانے کا بھی خاص مقصد ہے۔ کیا ہم فرد قوم ہوتے ہوئے ان مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ سن رہے تھے ہم بہت ہی خوبصورت اقتباس خدا کے کلام میں سے کہ وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ یقیناً خدا کے رحم، اس کی قدرت اور اس کی برکت کا تجربہ کرتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہر بات میں اس بات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اس کی فرما برداری کریں۔ تو یقیناً جو خدا ہم پر مہربان ہے، آئیے اس کی حمد میں بڑھتے ہیں، اس کی تعریف میں بڑھتے ہیں اور اس حمدیہ گیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا دیکھو، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، ایسا دیکھو، خوشیاں مناؤ۔ خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ، خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ، گیت گاؤ۔ ایسا دیکھو، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔
کہ سدھے دلانو خوب سجدا کہ سدھے دلانو خوب سجدا کہ سدھے دلانو خوب سجدا خدا دی کرنی وڈیائی ہمیشہ خوشی صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا نواں ایک گیت گاؤ ہن خدا دا بجاؤ گاؤ خوشیاں نال باجا خوشی صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشی صادقو خوشیاں مناؤ خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ خدا دے عشق وچ ایک گیت گاؤ گیت گاؤ خوشی صادقو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ اور یقیناً خوشی کے ساتھ ہم خدا کی اس زمین کو جو ہمارے لیے نعمتیں موجود ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں تعلقات میں باندھا ہے اور ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ان تعلقات کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی جو تعلق ہے اس کو بھی ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور آپ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں ہم اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ ضرور ہمیں خط لکھیں پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان کے پتے پر یا کال یا SMS کریں 0333482596 کے فون نمبر پر واٹس ایپ کرنے کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 0305337710 اور اس کے علاوہ PCRM فیصل آباد ہماری فیس بک ID ہے اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز ہمارا YouTube چینل ہے جی تو سامعین 23 مارچ کا موقع ہے اور حسب روایت ہم اس دفعہ بھی انعامی مقابلہ کروا رہے ہیں اور اس دفعہ انعامی سوال ہے پاکستان بنانے کے مقاصد کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی 3 قیمتی تجاویز لکھ کر ہمیں ضرور بھیجیے اور اگر ایک سے زیادہ خوش نصیب ہوئے تو پھر جناب انعام قرعہ اندازی کے ذریعے سے ہم دیں گے آپ کو اور اس کے لیے آپ جلد از جلد ہمیں لکھیں یا آپ کسی بھی طور پر ہمیں اپنا جواب بھیجیں ہمیں آپ کے جوابات کا بہت شدت سے انتظار رہے گا ساجد خان حکیم صدیق ماکھا صاحب اور ہمارے بہاول نگر سے یہ پیارے دوستوں نے جوشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا اور عظما یونس کی آواز میں پروگرام سنا اور عادل مشتاق کی آواز میں بھی پروگرام سنا تو آپ نے سبھی پروگرامز کو بہت پسند کیا اور آپ نے کہا کہ سبھی پروگرامز بہت اچھے ہیں سن کر مزہ آتا ہے اور آپ نے کائنات کو اور اسی طور پر حمدی عقید کو اور ابتدائی گفتگو کو پسند کیا ہے تو بہت شکریہ ساجد خان حکیم صدیق ماکھا صاحب اور آپ کے دیگر ساتھیوں کا جو مل کر پروگرام سنتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں خداوند تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے اور ہمارے اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھے آمین راجہ قاسم آپ کا تعلق ہے چک جمرہ سے آپ نے کہا ہے کہ
राह जिंदगी की पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से भी और सारी टीम की तरफ से भी। आपने कहा कि सभी चुटकुले बहुत मियारी हैं और बड़े सबक आमूज हैं और हर एक फीचर जो है वो बामकसद है और उसको सुनकर हम बहुत बातें सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। आज हम बात इसी पर कर रहे थे राजा कासिम कि वाकई हर चीज का एक मकसद है। तो आपने इस बात को सराहा और इसमें मदद की कि वाकई आपको पसंद आ रही हैं सभी फीचर्स। तो बहुत शुक्रिया जी, खुदावंद ताला आपको बरकत दे। और प्रोग्राम सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस पर कमेंट करने का भी बहुत शुक्रिया। राय विलायत खैर साकी, आपका ताल्लुक है ननकाना साहब से। आपने बताया कि उस दिन आप खैरियत से घर पहुंच गए और आपको बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। तो यकीन मानिए राय विलायत खैर साकी साहब, हमें भी आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी लगी और आपने जनाब प्रोग्राम को पसंद किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरे पास मौजूद है अकील असलम साहब का खत। और अकील असलम, आपने भी बहुत पसंद किया प्रोग्राम्स को और वर्ल्ड रेडियो डे के ताल्लुक से जो प्रोग्राम का इनाकाद किया गया आप उसमें शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। और आपने खास तौर पर शुक्रिया अदा किया उन बातों का जो आपने उस दिन महसूस की हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और आपने सभी दोस्तों के साथ मुलाकात की और फिर अपनी मोहब्बत का खूब इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहावल नगर के दीगर साथियों ने भी हमें कमेंट किया है और प्रोग्राम को पसंद किया है। बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का। तो अभी खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर मैं समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा। बहुत ही हमारा मनपसंद ये सिलसिला है सराइकी ड्रामा। तो आइए मिलकर इसे सुनते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। मलिक साहब, क्या आखिर डॉक्टर ने? जनाब दे सारे टेस्ट ठीक है। अच्छा ते ओ क्या दिन को खून दा क्या HB जड़ा है ना कोई 7.9 है ते ओ अनीमक अते जरा ब्लड प्रेशर को बस कंट्रोल करन दी लोड़ है बस। क्या मतलब है ए अनीमक क्या लूण दी नमक दी कमी थी गई है? यानी खून दी कमी को लू कमजोरी है बाबा बस। हाँ हाँ मलिक साहब, मैं तो पहले आदि हम हाय तोड़े घर दे जंजाल मेरा लहू भी पी गन मेरा लहू। आखिर मलक कहानी हो मौजे दी भाई, इज्जत जो वड्डी है तो वल मुसीबत भी तो वड्डी हो सी। अच्छा ये खून दी कमी को पूरा करना था कोई इलाज है? दसे ना तमा यहाँ लिख देते नहीं किदी आंदा हो सी। बस फल खाओ, सब्जियां खाओ, तितर बटेरे सब शय वगैरह वगैरह। मलिक साहब ओ ब्लड प्रेशर दवा लो। भाई गुस्सा ते हसद घट ते फिक्रां तू परहेज। मैं हासिद हां? वल गुस्सा नसीमा बेगम यो ता पिटेंदा बैठा। क्या करा मलिक साहब, तू जो तंग करेंदे हो? ए कोई साडी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्र नहीं किथा है? ओ आंदा पे नवी कार ते। अच्छा हैं नवी कार की है भाई? A1। अच्छा पर नहीं मुको कार समझ के चलावें ता। ते ए क्या समझ के चलेंदे? हवाई जहाज। मेरी तो लू कंबदी है। सच? पुत्र छोड़ी ना गाली को, तू वन कपड़े बदला वल चा कट्ठे पींदे वन तू वन शाबाश जी। अच्छा ए है नईम दे दाखले दी ए रसीद ठीक मुंशी दाखला दे आया कॉलेज दाखला। मलिक साहब ओ क्यों भला? अम्मी तारिक भाई 10 साल साया थी वने हा ओ आप तो नहीं मंगते ना। पुत्र असा उनके जिम्मेदार हैं क्यों तेरे ने पराया जंजाल पाला है। वन्ने आपने जमीना संभालियो है वन्ने जाई तू। नफीसा बेगम तेरा भणे जाए जे तई उंदी मां जींदी है कुशामता करेंदी आवे उंदी। हाय तेको क्या पता मलिक साहब, तेको क्या पता। हाई तो मेरी सक्की भेड़ पर ना पूछ डाढ़ी जालिम हावी जालिम। जालिम ना है बल्कि तेरी तरबियत करेंदी है। जे उंदी तरबियत ना होंदी तू साकू काबू देंदी आवे ए ते दस। तू सता उंदा कलमा पढ़ी रखो। बहरहाल मैं आखती थे हुण तारिक जवान है, इम्तिहान दी तैयारी कीते उको हॉस्टल भेजो। इत्था ना रावे खारे जवान अमान धी है। कुछ सोचो। तारिक साडा भिरा है। मेरे को पता है तुसा इना को नफरत करें दो। साडा खून है तारिक। हाँ
खून है सारा तारिक हाय उंदा सब कुछ है इतना क्यों डटा पे क्यों फेते था है हाय नफीसा यतीम है कल्ला है वाल बचपन को लो इथाई पाए हैं उको गढ़ छोड़ू बिला वजह ना ना दुनिया क्या सी पर अब्बा जी क्यों कढूं आपने भिरा को क्यों कढूं हाय अल्लाह मेरे को मौत दे रे ओए पूरा घर मेरी मुखालफत ते आवेंदे ना कढो बलाओ कोई था मैंने क्या भेज दिया अम्मी जी तुम्हारा गुस्सा था बस ये खाम खादा है तू वाइन तेरा वो तो तू वाइन ना वाइन अब मैं तेरी मां को समझे ना मैं वेंदी भई बस अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई वालेकुम अस्सलाम तू बिल्कुल मैं घबरा क्यों गए हो मैं असली ताहिरा हां रूहनी वो तो ठीक है पर ये जे वेले 12 बजदे पैन रात दे मेको वक्त देखना आंदे नईम भी आंदा पे नहीं पर क्यों हमला है गरीब ते मडी क्यों बधी पई है मैं सोचे जो इम्तिहान दी तैयारी हॉस्टल च वन करा हॉस्टल पर क्यों जरा दोस्तां नाल मशवरा असा तो हारे दुश्मन हैं अल्लाह ना करे नईम ते मेरे मजमून अलग अलग हैं तारिक भाई तो आपको ए एहसास नहीं जो असा तो हारे नाल कितनी मोहब्बत करेने हैं तारा क्या ख्याल है जे तुसा चले वैसो ता असा इम्तिहान दी तैयारी कर खिंसु नहीं तायरा ये गाल नहीं मेरा ख्याल है जो हॉस्टल च चंगी पढ़ाई थी सी मेरा ख्याल है जो तुसा अम्मी दी फीस वाली गाल ते नाराज थी गए हो नहीं तायरा ये उन्हां दा हक है ये कोई गिला नहीं तू हुण वन ते नईम भी नहीं आया जे आंटी आ गई तो तूफान आवे सी तेरा पुत्र कितना है तू ओ मारे गयो से हुण तां इत्थां रहण दी कोई सूरत ही नहीं अच्छा ता शहजादी इतना है अपने कजन कने बेशरम बेहया मां प्यू दा नक पेंदी है तू क्या प्यार दे हो होश छीवे हाँ मैं पागल हां अच्छा मड्डी भी बधी पई है बेगैरत इंसान नमक हराम हाय मेरा घर बर्बाद करना अभी जवान दी के निकलवानी तू नमक हराम अम्मी सोच के गाल करो अम्मी कुछ सोच के गाल करो अच्छा तेरा खुदा हाफिज आंटी खुदा हाफिज तारिक भाई रुक वञो बेहया वेदे पे हो छोड़ बेहया वञण दे नमक हराम हैं 12 बजे रात दे तू इतना क्या करे दी भैया में अम्मी क्या करे दी भैया में तू तो खुदा ता खौफ करो सिर्फ तारिक भाई को घरों कढण कीते अपनी मासूम थी ते इल्जाम लावण कर गुरेज नहीं कीता मैं एची मां किथाई नहीं निटी हाय मैं जालिमा मैं जालिमा डॉक्टर साहब बी नेगेटिव ग्रुप दा खून नहीं मिला डॉक्टर साहब खुदा दा वास्ते भी मेरे पुत्र को बचा के ना खून दे लो डॉक्टर साहब ये सारी दौलत हाजिर मेरा इको पुत्र है मेरा इको पुत्र है डॉक्टर साहब कुछ तो बोलो क्या बोला मलिक साहब को बोलने का मौका दे सो तमे बोला खून मिल गया डॉक्टर साहब मिल गए जी खून मिल गए ते ऑपरेशन भी कामयाब था शुक्र है मेरे मौला तायरा बीबी तेरी दुआ कबूल थी गई है असा देख सकते हैं भाईजान को हाँ लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आप नाल घिन में डॉक्टर साहब कित्थों मिले खून कह रही थे अल्लाह उनका भला करे मैं उनके पैर धो के पीसा डॉक्टर साहब या अल्लाह सारे मौसम को मेरी हयाती ला दे वो सामने मेरा रिटायरिंग रूम है ना उन्हें चे पिया अच्छा आहिस्ता तारिक भाई जी डॉक्टर साहब ये तारिक है अते नईम दा मसात है अच्छा तारिक है देख बेगम अपना खून आखिर अपना ही होंदे वाह तारिका ये क्या की थी जी
जी जनाब, तो वाकई अपना खून अपना ही होता है, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यौम पाकिस्तान के ताल्लुक से कि इसको बनाने का भी एक खास मकसद है, तो इसके पीछे जनाब बहुत खून बहाया गया जो वाकई बा मकसद था, ताकि हम उस मुल्क को हासिल कर सकें जिसमें रहने वाले जो है वो एक मोहब्बत का, एक खुशी का और अमन का और मोहब्बत का जो है वो एक पैगाम सभी रहने वालों के लिए आम कर सके। तो खुदा करे हम इस खून की कदर करें और इस मुल्क को हम वाकई उस मकसद के मुताबिक कायम कर सकें। जनाब बात कर रहे थे मकसद की, तो हमारा एक बहुत ही बामकसद प्रोग्राम है, फीचर है, जिसका नाम है आप बीती, और हम जब इसको सुनते हैं तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप बीती। जी सामीन, मेरा नाम हामिद मिस्ती है और मैं आपको एक आप बीती कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में मुलाजिम हूँ और दर्जा चहारों में मैं ड्यूटी करता हूँ, और मेरे साथ और भी मुलाजिम हैं, और मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त वाटरमैन है। तो हमें हर साल जो टेस्ट लिए जाते हैं उनकी जो रद्दी है वो हमें दी जाती है, और हम उनको बेचते हैं, और बेचने के बाद हम उनसे जो पैसे मिलते हैं उस रद्दी के, हम उनसे कुछ चीज खरीदते और वो हम इकट्ठे बैठ कर खाते पीते हैं। और ऐसा होता है कि जब कभी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो एक दफा कुछ यूं हुआ कि जो मेरा दोस्त है वाटरमैन, उसने किताबें जो थी जो गरीब गुरबा बच्चों को देने के लिए आई होती हैं, नई बुक्स, तो वो उसने उठाई और उसने चोरी से उनको बेच दिया। और मुझे नहीं पता था, लेकिन अगली सुबह मैं जब आया तो उसने मुझे बताया कि यार ऐसे मैंने वो 250 रुपए की किताबें बेच दी। तो अभी ये वो बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये तूने बड़ा गलत काम किया है, कि खुदा नाराज होता है, अल्लाह ताला खुश नहीं होता इससे। तो फिर उसने साथ ही बता दिया कि मेरी बीवी जो है वो बीमार होगी रात को, और उसके ऊपर जो है वो 500 रुपया खर्च आया। तो मैंने कहा देखा यार ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। और फिर उसने कहा कि यार मैं क्या करता, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था। तो मजबूरी के हालत में मैंने वो किताबें बेच दी। तो एक हफ्ता गुजरने के बाद फिर उसने एक ऐसी ही हरकत की, और उसने वो ये काम किया कि उसने कुछ लोहे का सामान था और वो उसने उठाया, और उठाने के बाद उसने वो सामान जो था उसको बेच दिया। तो मैं इस बात से बेखबर था, लेकिन जैसे ही सुबह फिर उससे मुलाकात हुई तो उसने फिर मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि यार मैंने कल वो लोहे का सामान जो पड़ा था वो उठाया और चोरी से मैंने उसको बेच दिया कि किसी को पता नहीं चले। तो जब मैंने उसको बेचा तो वो 500 रुपए का बिका, और साथ ही मेरी दाढ़ में दर्द शुरू हो गया, शदीद दांत में दर्द हुआ, और मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे 1100 रुपए लिए और मुझे दवाई दी। तो अब भी मेरी दाढ़ जो है वो दर्द कर रही है। तो यार ये कि मैं चोरी भी कर लेता हूँ और वो दुगने पैसे लग जाते हैं। मैंने उससे बताया कि आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा है। तो उसने कहा यार मैं क्या करूं, जरूरत थी मुझे तो मैंने ऐसा किया। तो बताने का मकसद ये है कि उसकी एक तरह से रहनुमाई हुई। मैंने उसे बताया कि जो खुदा ताला की बात को मानते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं। तो जो नहीं मानते तो फिर उनके घरों में मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है अपनी बुरी आदत को छोड़ें और हम अपनी बेहतर जिंदगी गुजार सकें। जी तो जनाब सुन रहे थे हम आप बीती, और जहां पर बात हो रही थी पाकिस्तान की, वहां पर बासियत एक मुल्की के साथ साथ कि इंसान होते हुए खुदा ताला के उस मकसद को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके तहत उसने हमें खलक किया है, बनाया है। और उसका मकसद यकीनन आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हम इंसान होते हुए उसकी मर्जी को इस जमीन पर पूरी करें और उसकी इबादत करें, और अपने हम जिन्स इंसानों से ऐसा बिहेव हम करें जो खुदा ताला की मर्जी में शामिल है। खुदा ताला चाहते हैं कि हम मोहब्बत, प्यार
اور सुलह सलामती को फरोग दें। खुदा करे कि हम इस मकसद को भी याद रखते हुए इस मकसद को खालस्तन पूरा कर सकें। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद ताला के हुजूर इन मकसद को भी दुआ में रखते हैं। खुदावंद ताला, हम आपके हुजूर मौजूद हैं, दुआ करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कि जो मकसद इसके पीछे कार फरमा था, हम उस मकसद को पूरा कर सकें। हम अमन, सुलह, सलामती और हर तरह से उन बातों को पूरा करें जो इसके लिए बांधी गई, जो इसके लिए एक तरह से बुनियाद के तौर पर रखी गई। दुआ करते हैं इसके तमाम शोबों के लिए, तमाम इदारों के लिए इनको बरकत अता फरमा दीजिए। और इसी के साथ साथ हम तमाम सामीन, उनके खानदानों के लिए बरकत की और खैर की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ मैं नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा। आपका मेजबान आदिल मुश्ताक। अगले शो में आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।